السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں لاہور بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ آصف رسوانہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ عبدالرحمان صاحب، لاہور بار کے تمام وکلاء اور اپنی آئی ایل ایف کی ٹیم اور ہمارے باقی وکلاء جو آئے ہیں، سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج مجھے میرا والہانہ استقبال کیا اور مجھے یہ عزت اور محبت بخشی، ورنہ جو پنجاب پر قابض جعلی حکومت ہے ان کا مہمانوں کے ساتھ رویہ آپ سب نے کل دیکھا کہ وہ کس طرح تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمران خان صاحب کا جیل سے حکم آ چکا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں پاکستان کے تمام وکلاء نے اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، کیونکہ جس طرح آئین میں ترامیم پہ ترامیم کیے جا رہے ہیں اور ہماری عدالتوں کو جس طرح مفلوج کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز یہ حکم دیتے ہیں سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کروائی جائے، لیکن ایک جیل کا سپرڈنٹ تین ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بہادر وکلاء، یاد رکھنا کہ جس طرح یہ عدالتوں کو مفلوج کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے معزز ججز لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، جس طرح خوددار ججز استعفے دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے جو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے، آزاد عدلیہ کی بحالی کریں گے، اسی جدوجہد میں ہمارا کردار ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن پنجاب میں جو پنجاب پولیس بدماش بنی پھرتی ہے، تو آپ لوگوں سے اچھا علاج ان بدماشوں کا پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہاں جمہوریت ہے، ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی، کہ ہم جلسہ بھی کریں اور پرامن احتجاج بھی کریں، لیکن یہاں پر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو
सिर्फ मुलाकातों के लिए आ रहा है और हमारे 1000 से ज्यादा कारकुन इन्होंने उठा लिए हैं। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराने की इजाजत नहीं है। आप लोगों ने खड़े होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ, हक और सच के साथ, आईन और कानून के साथ। इंशाल्लाह वो वक्त नजदीक है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी की ये जद्दोजहद हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होगी, आजाद अदलिया की बहाली होगी, आजाद मीडिया की बहाली होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। हम बात करें सुहेल अफरीदी साहब के दौरे के हवाले से कि उनका 3 रोज़ा दौरा लाहौर के अंदर आज उनका दूसरा दिन है। रात गए जब हमने लिबर्टी चौक के अंदर देखा, लिबर्टी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद सुहेल अफरीदी साहब के इस्तकबाल के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुसलसल रोका जा रहा था और गिरफ्तार भी किया जा रहा था। अगर हम उनके बात करें, आज सुबह जब वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए, वहां पे उनकी अहलिया और उनके बेटे और उनकी बेटी से जब उन्होंने मुलाकात की तो वहां पे भी पुलिस आ चुकी थी। इस वक्त जो वो अब तक की जो सूरत हाल हम आपके साथ सारी शेयर करते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब का जो आज का दौरा था वो कोट लखपत के अंदर उन्होंने जाना था। वो पहले ही सब कुछ डिसाइड हो गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें इस बात की इजाजत भी मिल गई थी कि आप कोट लखपत के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा कैद आप उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आज ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उनको रोक दिया गया और कहा गया कि आप कोट लखपत के अंदर नहीं जा सकते और ना ही आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त जब हमने उनकी बात सुनी, लाहौर हाईकोर्ट बार से वो इस वक्त खिताब कर रहे तो उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हमें बहुत तंग किया गया। जिस तरह हमने रात गए पंजाब असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा हमने झगड़ा देखा कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धक्के देकर बाहर निकाला गया कि आप लोग अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो वहां पे भी हमें बहुत सारा जो झगड़ा नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब कल 5 बजे सुहेल अफरीदी साहब बाबू साबू इंटरचेंज पर उतरे तो पुलिस की जानिब से उनको वहां भी रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गाड़ियों को रोका गया। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब अपनी गाड़ी में से बाहर आए और उन्होंने आके कहा कि जब तक आप इन लोगों की गाड़ियों को आगे नहीं गुजरने देंगे मैं भी यहाँ से आगे नहीं गुजरूंगा। उसके बाद पुलिस की जानिब से उन गाड़ियों को भी आगे गुजरने की इजाजत दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा लिबर्टी चौक के अंदर उन्होंने खिताब किया, स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने आगाज किया और कहा कि मेरा ओहदा, मेरी ये सीट अगर इमरान खान साहब के नजरिए पर मुझे कंप्रोमाइज करेगी कि मैं इस सीट पर लानत भेजता हूँ। मेरा नजरिया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान साहब ने मुझे इस सीट पर बैठाया है, जब वो कहेंगे मैं इस सीट से उतर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब का भी यही बयान था। उन्होंने कहा कि ये सीट इमरान खान साहब की अमानत है, जब मुझे इमरान खान साहब कहेंगे मैं ये सीट छोड़ दूंगा। तो सुहेल अफरीदी साहब का जो काम करने का स्टाइल है, जिस तरह से हमने उनके पब्लिक इंटरेक्शन देखा, अवाम के साथ उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत अच्छी हमें नजर आई कि जिस तरह से पंजाब की आवाम निकलना चाहती है अगर उन्हें कोई निकालने वाला हो। रात गए भी लाहौर की सड़कों पर लाहौरियों ने इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया, मोहब्बत का पैगाम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, पाकिस्तान के MNAs MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें नजर आए। लाहौर के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने एक मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर खड़ा कर दिया है, एक मरतबा फिर मोमेंटम बन गया। अब देखना यह है कि लाहौर की आवाम अब किस तरफ जाएगी। क्या सुहेल अफरीदी साहब और इमरान खान साहब का फैसला एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएगा? क्या जो ये सारा सुहेल अफरीदी साहब एक मोमेंटम बना रहे हैं, इस मोमेंटम के पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या सुहेल अफरीदी साहब लाहौर की आवाम को, पंजाब की आवाम को जगाने इसलिए आए हैं कि इमरान खान साहब अगर एहतजाजी तहरीक की कॉल देंगे तो पंजाब की आवाम बाहर निकलेगी? तो इस हवाले से अगर कोई और अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।